पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 4 चैप्टर 13। आज के चैप्टर का नाम है इनवैल्यूएबल टाइम। Rohit returned from his school. He was in a jolly mood and was shouting at the top of his voice. जो रोहित है वो अपने स्कूल से वो बहुत ही अच्छे मूड था और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। What happened? Why are you so happy? Rohit asked his mom. जो उसकी मम्मी है वो उससे पूछने लगती है आज तुम इतने खुश क्यों हो? Tomorrow school has organized a picnic for us. We are going to Dreamland. We will be enjoying all the swing and rides. It would be great day, full of pleasure, fun and no studies at all. अब जो बच्चा है ये बताता है कि हमारे स्कूल में पिकनिक ऑर्गेनाइज है। अब कल के दिन हम पिकनिक पे जाएंगे, मजे करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। Rohit was very glad and jumped with joy for the next day. In the evening, he went out with his mom and purchased chocolates, snacks, fruits, juice. अब अगले दिन क्या कहते हैं वो अगले दिन तक बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहा और अपनी मम्मी के साथ मार्केट जाकर उसने बहुत सारी चीजें खरीदी, चॉकलेट, स्नैक्स, फ्रूट्स, जूस, बहुत सारी चीजें। After this, he took out his favorite boots and cap. उसके बाद उसने फेवरेट बूट्स और कैप निकाले। He put all the important things in his picnic bag. Rohit did not stop smiling even for a second. अब उसने अपने पिकनिक के लिए हर चीजें कलेक्ट कर लिया और वो एक मिनट के लिए भी हंसना उसका बंद नहीं हुआ। After his dinner, Rohit switched on his television. Rohit shouted at his mom, "If you begin to watch that television by this time, you will never be able to wake up on time. You should remember that you have to go for a school picnic also." अब जैसे रोहित जो है वो टीवी देखना शुरू करता है, उसकी मम्मी पीछे से बोलती है, अगर तुमने टीवी देखना शुरू करा और तुम लेट सोए तो तुम सुबह टाइम से नहीं उठ पाओगे, तो टीवी मत देखो इस टाइम। You will have to wake up 1 hour before the routine time. So now please go to bed and sleep tonight. वो कहते तुम्हें नॉर्मल टाइम से 1 घंटा जल्दी उठना है तो प्लीज जल्दी सो जाओ। No, Mom, I'm willing to see the television today. I do not have any homework for tomorrow, so I will watch as many shows as possible today. I will wake up tomorrow on time. You do not worry. Saying this, Rohit continued watching the TV till late at night. अब रोहित ने अपनी मम्मी की बात सुनकर उनको क्या जवाब दिया? नहीं मम्मी, आज मैं जितना मन चाहे उतना टीवी देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कल मेरे को कोई होमवर्क नहीं है, कल के लिए कुछ नहीं करना। आज जितना मन करे मैं टीवी देखूंगा और पक्की बात है कल मैं टाइम से उठ जाऊंगा और पिकनिक भी चला जाऊंगा। The next day in the morning, Rohit's mom tried hard to wake him up, but all attempts failed because he was deep asleep. Rohit, leave the bed or you will miss the school bus, shouted his mom. At last, Rohit left the bed, complaining against getting up so late. तो रोहित जो है वो रात को बहुत लेट तक सोता है, उसकी मम्मी इतनी कोशिश करती है उठाने की, बट वो उठता ही नहीं, वो उठ जाता है और वो लेट भी हो जाता है। He turned his eye towards the watch and yawned. It was only 7 a.m. It is at this time my school begins. All of a sudden, he remembered that his school bus was coming today half an hour earlier. He rushed towards the bathroom with his towel and shouted, "Mom, assist me! Only 10 minutes are in hand." अब उस जैसे वो टाइम देखता है उसे एकदम से याद आता है कि आज तो बस आधे घंटे जल्दी आनी है। वो अपनी मम्मी से नहाते हुए भी कहता है, "मम्मी जल्दी जल्दी मेरी हेल्प कर, सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं मेरे पास." I am not willing to miss my school picnic. Rohit missed his breakfast and ran towards the bus stop, but he was a bit late. He saw the 7th hour, the school bus leaving from the bus stand, so he missed it. अब in the end जो रोहित है उसको नाश्ता भी मिस करते हुए भी जल्दी भागता है, फिर भी in the end अपनी स्कूल की जो बस है वो मिस कर देता है। At this time, nothing could have been done. Rohit began to cry. He returned home and hugged his mother with strength in despair. अब in the end जो रोहित है क्योंकि वो लेट हो जाता है और उसकी बस भी निकल जाती है, अपनी मम्मी को हग करके गले लगा के जोर जोर से रोने लगता है। Mom, I'm very sorry. You were absolutely right. Now I fully understand the value of time. वो अपनी मम्मी को गले लगाकर बोलता है, कहता है कि मैं अब समय की कीमत समझ गया हूँ और मुझे माफ कर दो। Hence it is said, time and tide wait for none. अब इसीलिए कहा जाता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो इससे हमारे क्या थॉट्स है बच्चों? टाइम वंस गॉन इज गॉन फॉरएवर। एक बार जो समय चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और काम किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम इज प्रीशियस। जो हमारा समय है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है हमारे लिए। और हमें क्या याद रखना है? वी शुड नेवर वेस्ट अ टाइम। हमें जो हमारा कीमती वक्त है उसे जाया नहीं करना चाहिए। टाइम इज इनवैल्यूएबल। टाइम की कीमत तो वैसे कुछ नहीं अगर ट्वेल्थ में देखा जाए, लेकिन फिर भी जो टाइम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन।
हमारा जो वक्त है वो किसी के लिए वेट नहीं करता। एवरी मिनट ऑफ टाइम काउंट्स। हर एक वक्त, हर एक मिनट कीमती होता है। हर एक वक्त, हर एक टाइम गिना जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।